Hello students, welcome to Guiding Physics. Today we will learn how to solve improper integral using contour integration. So before we start, let us discuss some theorem that are required. So first of all, in real calculus, the improper integral of a continuous function, let us consider a function fx, and this is in the domain 0 to infinity, is defined by function integration of this function fx in the domain 0 to infinity is defined by integration 0 to infinity fx dx. This can be written as integral 0 to r fx dx when limit r tends to infinity. These two are same. So if this limit exists, we say that the improper integral is convergent. If this limit exists, we say that the improper integral is convergent. Means this integral have some finite value. Now let the fx is continuous. Fx is continuous in the region minus infinity to infinity. Then we define the integration minus infinity to infinity fx dx equals to limit in the same way r1 tends to infinity minus r1 to 0 fx dx and plus limit r2 tends to infinity 0 to r2 fx dx. We already know that if some integral, let minus a to b, here a and b is real number fx dx, then we can write it like minus a to 0 plus 0 to b fx dx. So here is also in the same way I write this. So let us assume this is नंबर 1, बट इस फंक्शन को हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं. यहाँ पर आर माइनस आर वन टू जीरो एंड जीरो टू आर टू ना करके हम माइनस टू माइनस आर टू आर कर सकते हैं और आर को टेंस टू इनफाइनाइट कर सकते हैं. तो लिख लेते हैं हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स व्हेन limit r tends to infinity. This is also possible. So here this is called Cauchy's primary value, this integral. This is equation 2. If the improper integral 1 is converged, then its converging value coincide with the Cauchy's principal value. This is called principal value. And this ये इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज किया, मतलब कि यहाँ पर हम अगर एक फाइनाइट वैल्यू पाए तो वो वैल्यू इस इंटीग्रल के वैल्यू के साथ कोइंसाइड करेगा. इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 converges, then its converging value coincide with the Cauchy's principal value, but converse may not be
ट्रू बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। सो ये हमारा एक थ्योरम हो गया कंप्लीट। नाउ हम आते हैं थ्योरम 2 पे। दूसरा थ्योरम, let us assume this is an argon diagram, this is real z and this axis is imaginary z axis. Now let us consider a arc, some arc. This is part of a circle, rename this as C. This arc is part of a circle z equals to r e to the power I theta. This here this is theta, consider this is theta 1 and this is theta 2. So basically theta equals to theta 2 minus theta 1, this portion of this circle. If C is the arc, if C is the arc theta 1 से लेकर theta 2 तक of the circle z equals to r e to the power I theta. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C such that mod z equals to r, and if limit r tends to infinite z f z equals to a, then integration over this curve C एफ जेड डी जेड का वैल्यू होगा आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 व्हेन लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये है हमारा फार्मूला। तो क्या हुआ यहाँ पे आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, जेड एफ जेड का वैल्यू अगर ए हुआ तो जब हम एफ जेड का इंटीग्रल करेंगे दिस आर्क के अलाउंग एंड लिमिट दिस आर को इनफाइनाइट तक कर देंगे तो ये होगा। तो हम इसका प्रूफ अब देखेंगे। तो लेट अस प्रूव दिस। टेक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस कंडीशन, लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड इक्वल्स टू ए। नाउ दिस इंटीग्रेशन लिमिट r tends to infinite इंटीग्रेशन along c एफ जेड डी जेड की ये जो r का इक्वेशन है वो है z इक्वल्स टू r e to the power I थीटा। सो z इक्वल्स टू r e to the power I थीटा, सो dz will be I r e to the power I theta d theta. So now put all this thing in here. So we get here you can see that theta is from theta 1 to theta 2. So r tends to infinity and the integration will be from theta 1 to theta 2 and if z की जगह हम r e to the power I theta पुट कर देंगे और dz की जगह I r e to the power I theta d theta. So now I को हम बाहर ले लेंगे, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लिमिट को हम अंदर ले लेते हैं। तो थीटा 1 टू थीटा 2 एफ ऑफ r e to the power I थीटा इंटू r e to the power I थीटा d थीटा। तो ये जो है हमारा ये फोर्स, यहाँ पर हम अगर z की वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट z की जगह आएगा r e टू द पावर आयोटा थीटा एंड एफ जेड होगा एफ ऑफ r e टू द पावर आयोटा थीटा। दिस इज a, this and this. So if we call this equation 1, so using equation 1 we can write I integration theta 1 to theta 2 a d theta and this integral will become I a theta 2 minus theta 1 integration limit r tends to
infinity dz is this. When limit z tends to infinite, z f z is a. Now consider limit z tends to infinite z f z इक्वल्स टू 0. अगर ये लिमिट 0 हो गया तो क्या होगा? तो ए के वैल्यू 0 हुआ बेसिकली. सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो यहाँ पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा. तो अगर ये लिमिट 0 हो गया तो लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अलोंग c एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो बेसिकली हमने क्या सीखा? अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल था, जेड इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा. उसका एक पोर्शन हमने ले लिया थीटा 1 से थीटा 2 तक. ये हुआ, उसको नाम दे दिया हम c. तो अगर लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड इज ए होगा तो लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व c एफ जेड डी जेड इज आई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1. एंड इफ दिस लिमिट, सॉरी यहाँ पर r होगा, r टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, बेसिकली मॉड जेड इज r. सो मॉड जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट और r टेंड्स टू इनफाइनाइट हम कोई एक बोल सकते हैं. यहाँ पर भी r होगा. तो लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड इज 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा. नाउ कॉचीज रेसिड्यू थ्योरी, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर मान लो कि ये हमारा एक कॉन्टूर है. कॉन्टूर हम किसी भी तरह का ले सकते हैं. ये माइनस आर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ, ये है हमारा कॉन्टूर. मान लो ये है सी आर. सो इस कॉन्टूर के अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी पोल हो सकती है. बस ये रियल एक्सिस पे कोई पोल नहीं है. और हम इस कॉन्टूर को इस तरह से लेंगे कि सभी पोल इस कॉन्टूर के अंदर आ जाए. सो इफ एफ जेड इज एनालिटिक in the upper half of the z plane except at a finite number of poles in it and having no poles on the real axis, and if z f z tends to 0 as mod z tends to 0, mod z means r tends to 0, then by contour integration integral minus infinite to infinite fx dx is 2 pi I summation over residue, where r plus summation over r plus represents the sum of residue at poles in the upper half plane. तो C हमारा ये एंड ये. तो C बेसिकली आर माइनस आर टू आर एंड सी आर, ये दो मिलके C बनाया. तो ये एक कॉन्टूर हुआ. तो हम कॉन्टूर इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं क्लोज कॉन्टूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज 2 पाई आई, एंड इसके अंदर जो रेसिड्यू होगा उसका सम 2 पाई आई आर प्लस. नाउ इससे हम
इस पे कैसे आएंगे, तो इसको हम दोनों पार्ट में लिख सकते हैं। दोनों पार्ट में लिखे तो क्या होगा, माइनस सपोज कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, तो यहाँ से फर्स्ट हम यहाँ जाएंगे, फिर ये पाथ फॉलो करेंगे। तो माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड प्लस सी आर एफ जेड डी जेड. Now see that this is real z, this is real axis. Real z मतलब z, if z is x plus iy, then x is the real, it is x axis and it is y axis, and in this line y is 0, so we can write z is equals to x. So basically this will be, this integration will be integration minus r to r. Here fz is fx because in real axis z is x, imaginary part there is no imaginary part, and dz is dx plus integration cr fz dz equals to क्या होगा, 2 pi I summation over r plus. Now check limit r tends to infinite z f z इक्वल्स टू 0. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड डी जेड हमारा 0 हो जाएगा व्हेन आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट. तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा. ये इस फार्मूला को हम पहले अभी पढ़ चुके हैं. नाउ ये 0 हो जाएगा, तो हमारा था क्या, माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी आर एफ जेड डी जेड इज 2 पाई आई समेशन ओवर आर प्लस. नाउ टेकिंग लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड. तो ये आर है मॉड जेड और इस आर प्लस, ये आर प्लस है रेसिड्यू, सो कंफ्यूज मत हो जाना. तो हम लिखेंगे आर टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई समेशन ओवर रेसिड्यू प्लस. यहाँ पे कोई लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक नंबर है. तो हाँ, आप देख सकते हैं ये थ्योरी भी मैंने पढ़ाया वीडियो के पहले ही पढ़ाया, इस वीडियो पे पहले पार्ट में. ये अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 हुआ, तो ये पार्ट 0 हुआ. और इस पार्ट को हम पहले दिखा चुके हैं कि ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स होगा इक्वल्स टू 2 पाई आई समेशन ओवर रेसिड्यू प्लस. तो ये हो गया हमारा. नाउ अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे समझते हैं. तो ये हमारा एग्जाम्पल है. नाउ इसको हम इसके जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ जेड पुट कर देंगे. सो ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड ऐसा हो जाएगा. सो consider the integration, this integration, and here z is r e to the power I theta. This here minus r to r and this is cr. सो हम ये कंटूर चूज कर रहे हैं ताकि इस फंक्शन का जो भी पोल होगा वो हम ऐसे इस कंटूर को चूज करेंगे. इस फंक्शन का जो भी पोल होगा वो इस कंटूर के अंदर आ जाएगा. तो हम ये इंटीग्रेशन चूज करते हैं और इसको हम इसका नाम दे देते हैं सी. सी इज माइनस आर टू आर एंड सी आर, ये दोनों मिलकर टोटल सी है. तो इसको हम सी के अलॉन्ग इंटीग्रेट करते हैं. तो ये जो फंक्शन हुआ इसको हम लिख सकते हैं क्लोज कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड इज
1/1 + z²। अब हम पोल फाइंड करते हैं, तो पोल्स ऑफ fz इक्वल्स टू 1/1 + z² इज गिवन बाय, तो पोल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + z², डिनोमिनेटर पे जो है उसको 0 पुट कर दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z + i इंटू z - i। तो बेसिकली हमारा पोल क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू i एंड माइनस i। तो i सपोज यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और माइनस i यहाँ पर। तो माइनस i कंटूर के बाहर है, तो वो तो हम बाद दे देते हैं, इसको हम, ये हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। पर कंटूर के अंदर जो पोल्स होंगे उसको ही हम पकड़ेंगे। तो z इज इक्वल्स टू i पे हमारा सिंपल पोल है। Thus, if z has simple pole at z equals to I inside C के अंदर पड़ता है, तो इसका हम रेसिड्यू निकालेंगे। तो रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू आई। दिस इज रेसिड्यू का थ्योरी से हम जानते हैं, ये होता है लिमिट z टेंड्स टू i z माइनस आई एफ जेड। नाउ हम एफ जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, z टेंड्स टू i z माइनस आई 1/1 + z²। नाउ इस 1 + z² को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू i z माइनस आई बाई z माइनस आई इंटू z + i, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये कैंसिल हो गया एंड z + i। अब हम z की वैल्यू पुट कर दे, तो i + i दैट इज 1/1/2i। सो दिस इज द रेसिड्यू एट दिस पॉइंट i। Now we use Cauchy's residue theorem। तो रेसिड्यू थ्योरम के हिसाब से क्या है, क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज 2πi समेशन ओवर रेसिड्यू। तो हम इस इंटीग्रल को पार्ट में भाग कर लेते हैं, तो -r/r f(x) dx, क्योंकि वो जो था कॉन्टूर इस तरह था, इस तरह, ये रियल एक्सिस था, रियल एक्सिस पे x + i y, z इज x + i y, तो रियल एक्सिस पे y 0 होगा तो z x हो जाएगा, तो यहाँ पर, और dz dx हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी आर, यहाँ से यहाँ तक का हो गया। फिर इस पोर्शन का हम ले लेते हैं सी आर, यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों हैं, तो हम एफ जेड ही रहने देंगे। डी जेड इक्वल्स टू 2πi इंटू हमारा रेसिड्यू क्या था, 1/2i। सो आई कैंसिल, 2 कैंसिल, सो ये हुआ पाई। नाउ इसको हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट कैसे करें, ये जेड एफ जेड क्या होगा, जेड बाई जेड 1 + z², क्योंकि एफ जेड था 1/1 + z², तो जेड एफ जेड हुआ ये। तो लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड बाई 1 + z²। तो हम अगर जेड की वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पर होगा इनफाइनाइट 1 + z² दैट इज 1 + इनफाइनाइट स्क्वायर दैट इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल पर यूज़ किया तो क्या होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको डेरिवेटिव करे तो 1, इसको डेरिवेटिव करे तो 2z। नाउ हम z का लिमिट फिर से पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर नीचे इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट 0, तो ये लिमिट हमारा 0 आ रहा है। तो लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड हो जाएगा 0, ये हम थ्योरी से पढ़ चुके हैं। और लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन -r/r f(x) dx, ये क्या हो जाएगा, -∞ to ∞ f(x) dx, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
तो ये दो वैल्यू इस इंटीग्रल पे पुट कर देंगे। तो इसको एक नंबर दिया, तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से जीरो हुआ, जीरो जीरो इक्वल्स टू हुआ पाई। तो क्या आया हमारा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज पाई। दिस इज द आंसर। तो आप इस तरह का इंटीग्रल अपनी बुक पे भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट पे कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।